Yes. The next topic what we are going to start is state management, database.stateful interfaces. Okay. Let's go to this diagram and try to understand what the problem statement is all. See, uh, let's consider that we are fetching data from the account object. And for an example, let's say that account object altogether has 24 different records. Okay. Now, with the help of a batch program, we are fetching the records. And one more thing is like, the size of the batch, what we have decided is 4 records per batch. This is what the size, what we have decided. Yesterday, we have taken one problem. Yesterday, we have taken one problem and then we have seen like how can we execute the batch classes and then how can we, decide the size of the batch and everything. So let's take this few assumption that we are with the help of a batch programming, we are trying to fetch the records from the account object. And let's take in consideration that there are altogether 24 records inside the account object. And one more thing what we have done is like, when during the execution database.execute method, database.batch execute batch method, we have given the size of the batch as to be 4. That means 4 records per batch. So 4 record per batch means how many batches will going to be required for 24 to fetch the 24 is like 24 divided by 4. It's obviously 6 batch, like 6 fours are 24. There are altogether 24 records. The batch size is 4. Therefore, the total number of the batches that is going to be formed to fetch this 24 record is 6 batches. And in every batch there will be 4 records. Okay. So one thing. Now second thing, what we want, let's for an example, we wanted, see there's a field and you know this, let me go back to the Salesforce once again. See in the account object there is a field called as annual revenue. You see there's a field called as annual revenue. Let me go to the all accounts, and we have a field called as annual revenues. Okay, for few of the records it could be blank, for few of the records it could be blank, but most of the records, they are having the annual revenue. Okay, now annual revenue is a kind of currency field. So, what is the use case? The use case is like we wanted to calculate, the sum of annual revenue of all of the accounts. Sum of the annual revenue of all of the accounts. Like here it is, for example, 10 lakh plus 10 lakh is 20 lakh, 20 lakh plus 35 lakh, something like this. So at the end we wanted that we including all of the accounts, this much annual revenue is being generated. That is what the use case is. So once again, let's come to the example. So I have 24 records. I decided the batch size has to be 4. That means 4 divided by 24. 4 divided by 24, it comes out to be 6 batches. Okay, altogether there will be 6 batches. Now, in every batch, we are going to fetch 4 account record. Number 1, 2, 3, 4 in the batch 1, and then in the batch 2, number 1, 2, 3, 4. In 3, altogether there are 6 batches. For every batch, there are 4 records. Every batch consists of 4 records. Now see for example, when the batch 1 was executed, we have added the annual revenue of every field. This image seems to be blurred because I have actually cropped this image from the video. जहाँ से मैं अपना training किया है तो वहाँ पर से video से मैंने crop किया है. That's the reason this image seems to be a little bit blur. ठीक है, but we can understand this, the ये इतना, this is not the I mean this is not something that you should understand. ये बहुत clearly दिखना चाहिए. Let's understand this in a way that this approximately is 20 lakh, 10 lakh, 4 lakh, something like that. That comes out the whole calculation of this 4 account record. The annual revenue comes out to be like for example 35 lakhs. And then when batch B1, the B1's calculation was 35 lakh. When B2 was executed, we need to calculate, we need to perform the addition of all the annual revenues of all 4 accounts. It comes out to be 75 lakh. And then, batch 3, it comes out to be 24 lakh 50,000, something like this. Now, what we need to do at the end is like, what we need to do, we need to perform the addition of all of the annual revenues of all of the batches. So when batch B1 was executed, when batch B1 was executed, what was the sum of annual revenue? It was 35 lakh. But when batch B2 was executing, thus the sum comes out to be 75 lakh. So what we need to do, we need to add 35 lakh with the 75 lakh, like this. When batch 3
When batch 3 will comes in comes into execution, the sum of all annual revenues comes out to be this 24 lakh 50,000. That we need to add with the past previous two results, something like that. And at the end of, when the last six number of batch was being processed, we need to finally find out how much total annual revenue is being generated. That's what the thing. Okay. So this is what the use case is. This is what the use case is. Even I think this one is the only program. Create a batch class to calculate the total annual revenue of all of the account records in the object by dividing them into various batch size. For example, the batch size of the four. This is what the example. So what we need to do, first of all, we need to fetch all of the records of the account object, and then we need to calculate. We need to first of all divide them in a batch of four. We need to divide them in a batch of four. Okay, in a batch of four. If I see to this Salesforce account, how many records we are having? We are having 35. 35. If I give the batch size as 5, for example, not 4. If I give the batch size as to be the 5, so 5 6 are 30 and 5 7s are 35. That means there will be going to be 5 7 batches will be there. If I give the batch size as to 5, I have 35 records. 5 divided by 35, there will be 7 batches. There will be 7 batches in that case, and in every batch there will be 5 records. Okay, there will be 5 records. Now what we wanted to calculate the total annual revenue, including all 35 batches, including all 35 account records, not batches, all 35 account record. What is the sum of total annual revenue? Right? That is what we want. So here we will be obviously implementing this kind of program. Okay, this is the kind of use case. This is the kind of problem statement that we are about to implement. But then there is one difficulty. Let's discuss what is that difficulties. So let me open this bash programming execution once again. So what is the difficulty? Let's understand this. See, we know this, that we fetch the data from any of the object with an SQL query, but we won't execute SQL query with database.query method. Rather, we execute with database.getQueryLocator is the name of method. With this method, we execute this query, SQL query, a dynamic SQL query. We first of all create a dynamic SQL query, and then we execute it with the database.getQueryLocator method. Now, this method is capable of returning how much record? 50 millions record. Okay. Now that 50 millions record will be going to store inside a temporary memory that's going to be accommodated in a temporary memory, heap memory. What else start method will do is like, it will form the batches. It will form the batches. The default batch size, if you don't give any batch size, whenever you execute the batch program, there is a method, database.execute batch method, like where we need to give the batch size. If we give it, the minimum is 1, the maximum is 2000. This is the range. Okay, minimum batch size is 1 record, maximum batch size is 2000 record per batch. But if you don't give it, it becomes what? 200 batches, 200 records per batches. Now what start method actually do? It start method will transfer first batch. Now see, for example, let's take this as an assumption. When batch b1 was executed, okay, when b1, first of all, the b1 batches was given, b1 batch was given to execute method. Okay, b1 batch was given to execute method. After executing b1, the sum of annual revenue comes out to be, for example, 10 lakh, 10,000, 10 crore, whatever. Okay, this was what? Batch b1. Okay, after b1, the start method has given the next batch. The next batch is what? Batch b2. And let's say after executing batch 2, the sum of annual revenue comes out to be 30. The sum of annual revenue comes out to be 30. Okay. After number 2, number 3 batch will be processed. Now after executing, when execute method processed batch number 3, the sum of annual revenue comes out to be, for example, 40. Okay, 40. So what at the end should happen? Or it should get plus. When 30 plus 10 is 40, 40 plus 40, 80 lakh or something like this. This is what the ideal scenario is. We wanted that batch B1 output should be get added to B2, that B2 should be get added to B3 and B4 and B5,
whatever, how many number of the batches, they should be added internally. They should be added internally. This is what, and at the end, I should get the sum of all. Okay. Now, what is going to be happen in the real time? Let's see. Okay. This was the use case, but what is the default execution? The default nature, the default behavior of the batch programming. Let's understand that. Let's understand that. Actually, you know what happened? When batch B1 was processed, when batch B1 was processed, once, when batch B1 was processed, when batch B1, when B1 was given to execute method, and execute method performed the execution of batch B1, and for example, that sum of annual revenue comes out to be 10 lakh. Okay, 10 lakh. Okay, fine. When batch number B2 was given to execute method, when batch number B2, it will calculate the annual revenue of B2, that comes out to be 30. That comes out to be 30. But when it executes B2, now listen it very carefully. When it executes B2, the B1 result is lost. The B1 result is lost. This is the default nature. This is the default nature of batch program. Whenever, whenever, whenever it executes the current batch, it executes the current batch, all of the result, all of the governor limits and everything has been reset. The previous transaction, the previous transaction result has been lost. When when, like, I could explain it like this. Okay, the B1 output was 10, but when B2 come into execution, after B1 is over, B2 will come into execution. And as soon as execute method starts executing B2, when it is executing B2 method, all of the result that was generated from B1 is lost. All of the result from B1 is lost. So everything, it includes your it will reset your governor limit, it will reset your all of the heap memory and content of everything, it has been lost. That means if the output of B2 is 30, now you have lost 10. You cannot perform the addition of 10. And this happens every time, when after this, after B2, B3 comes into existence. B3 will going to be get executed. When execute method is now, if suppose that execute method is now executing B3, that means all of the result that is being generated from B2 is lost. Although it will perform the addition of our annual revenue, let's say it just comes out to be 15 lakh or something. Okay, fine. That is true, because B3 is executing, its result is there. But the result of B1 and B2, that is going to be lost. This is what the default behavior of a batch program. Whenever it performs a new, whenever it performs a new transaction, whenever it execute a new method, all of the result that is generated with the previous batch is going to be get lost. This is what the default behavior of a batch program. So here, if we don't make any override over here, if we don't override this behavior, if we do not make any such kind of any such provision, how to provide that I'm going to tell you. But if you don't, if you don't provide and you go with the default behavior, you cannot perform B1 plus B2 plus B3 plus B4. You cannot perform this. No, it is not going to be happen. Why? Because it's very obvious. If the batch programming is processing, if the execute method is processing B2, all of the result of B1 is being lost. When it is processing B3, all of the result of B3 is being lost. That is the reason, we cannot perform this addition with the default behavior. We need to think beyond something. So this is what the default behavior of a batch programming. Whenever if the result of B1 will going to be get lost when B2 is under execution. The result of B2 is going to be get lost when B3 is under execution. The result of B3, whatever is generated, is going to be lost when B4 is under execution. So this is what the default behavior, this is what the default behavior. And we need to override this. We need to override this. Here, to solve this example, that we wanted the output of B1, we wanted that output of B1 should, shouldn't get lost. It should hold. It should hold the output of every batch. After execution of B1, for example, if this is the result, we need to hold this result. And we need to add it with the next batch result.
देन वॉट एवर द एडिशन, ये दोनों का एडिशन जो कुछ भी आता है, 70 + 30 फॉर एग्जाम्पल इज 1 लाख 10 लाख 1,10,000 वॉट एवर, ठीक है, 110, we need to hold this output, and then the execution of b3 happens. This is the result of b3. We need to add it this to b3, 1 and like 10 plus something, for example 24, okay, that comes out to be 134. We need to hold this result. After b4 this result comes out to, we need to add this result along with this, like this. So every time we need to hold the previous result. That is what the use case is. And this is not a default behavior, but how you can do that, that is what we are learning with something called as state management. So there is a class for this. Whenever you wanted to have this kind of functionality, there is a class for this. Database.stateful interface. Database.stateful interface is one of the interface that is used to carry forward the result of one transaction of the batch to the another transaction. That is used to carry forward the result of one batch execution to another batch execution. So we need to interface this. Now how to do that? Let's solve this. Let's go with this use case and let's solve a program for this. Okay, so I'm copying the use case and let me go to the Salesforce. Let's go to the developer console and let's create a separate class for this. Let's create a separate class for this. So I'm creating a class with the name. Let me copy it from the use case itself. Calculate this name. With this name, calculate total annual revenue batch. Okay, this is what the name I'm giving. Okay, now see, I want to make this class as a batch class. So yesterday what we have learned, चलो उसको implement करते हैं, उसके बाद में फिर exactly we are going for the use case. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं. This is my use case. This is my use case. Okay, what is my use case? Let me just copy the use case also. So this is my use case, by the way. We are fetching the data from account object, and then we are dividing this into a batch of the size 5. That means 5 records in one batch, and then we will be performing the addition of annual revenue. And we wanted that the result of one batch should be get forwarded to the another batch. So I created a class. Now let me make this class as a batch class. तो इसके लिए क्या क्या required है? सबसे पहले scope. Scope should be what? Global. ठीक है, scope should be global. दूसरा, it must implement whenever you wanted to make this as a batch class. देखो अभी तक कोई error नहीं है, but as soon as you implement to make it as a batch class, what you need to implement? You need to implement database.batchable interface. Database.batchable interface with an parameter of s object. Object ठीक है. Now see what happened with a parameter of s object. Now as soon as you implement this, you will be getting one error. ठीक है, you will be getting one error. What is that error? It must have something called a start method. It must have something called a start method. Then it must have something execute method. It must have a finish method. This is what the error. ठीक है. So as soon as you make it a batch class, Apex itself will tell you any batch class must have 3 methods. What methods? Start. It must have 3 methods. Start method, and then it must have execute method, and then it must have what? It must have finish method. Okay, it must have finish method. These are the 3 methods. Now let's complete this format first, and then we will go for the use case. Use cases बाद में चलते हैं. So all of these methods should even be what? They should be global. And all of these methods should also, the scope of this method, the access specifier of this method should also be global. ठीक है. एक चीज और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको कैपिटल कर देता हूँ और कुछ नहीं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है. मेथड नेम है, usually we have a practice to write it in the first character has to be the capital. Okay, now ठीक है. देखो ये जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने जब whenever they will ask you to in the interview, देखिए whenever they take the machine test, they will ask you to write down the format of a batch class. You need to implement it step by step like this only.
ऐसा ही लिखना है आपको. To try to adapt this practice for your interview also. They will ask you, they will ask you in the interview whenever they take the machine test, usually two to three things is common. They can ask you to write down the batch class. They can ask you to write down some of the SQL query, typically relationship query. Or they could ask you to write down what triggers. ठीक है. There are few programs for that. I'm going to discuss that also when we are starting that topic. But this is the way. This is the way. See, understand the way how I'm writing all this. The same way, the same technique, the same step by step. You need to follow the thing. ठीक है. Create these class, make it implement with database.batchable of S object, then create three methods: start, execute, and finish. Make it global. Now come to what? Now come to the internal parameters. ठीक है. Now come to the parameters of every method. What is the parameter? That there's a parameter, there's a method which with start, execute, and finish used to have a communication in between them, and that is what database.batchable context. So database dot batchable context. ठीक है. This is the context. With the help of this context, with the help of this method, all the three start, execute, and finish is used to have a communication in between them, and make any variable name. So I usually give this. You can use anything. Database.batchable context along with a variable name. Copy this, paste it everywhere. Here also and here also. ठीक है. So all of them have this parameter. Execute method have one more thing. Execute method have one more thing, and that is the list of S object. List of S object. Why? Yesterday we have discussed this. List of S object, because it used to hold whatever the start method will give. It used to hold that. It used to hold that. And so you could give any name to over here. For example, yesterday I think I have given record to process. Record to process. ठीक है. Record to process. Probably I have given this record to process. और चलो अकाउंट टू प्रोसेस कर देता हूँ इसको, बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग प्रिसाइसली अकाउंट, है ना. कुछ भी दे सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है. यू कुड गिव एनीथिंग. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स टू प्रोसेस, दिस इज व्हाट आई एम गिविंग द नेम. ठीक है. ये हो गया इसका पैरामीटर, इंटरनल पैरामीटर तीनों के. अब हम आते हैं रिटर्न टाइप के ऊपर में. ठीक है. योर फिनिश मेथड and the execute method, both of them have written parameter as to be what? Void, because they are procedures. They don't return anything. Start method used to return what? Batches return करता है, records return करता है. इसलिए स्टार्ट मेथड का जो है, इसका स्टार्ट मेथड का जो आपका रिटर्न टाइप होता है, दैट इज डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्लास. डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर. ठीक है. डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर. यस. ठीक है. सो दिस इज द रिटर्न टाइप. ठीक है. दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ स्टार्ट मेथड, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर. रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूट एंड फिनिश मेथड हैव रिटर्न टाइप एज टू. तो ये है, इतना लिखना है यार आपको. whenever they will ask you to write down the format, up to this you need to write down. ठीक है. नाउ बिकॉज यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप है, इसलिए यहाँ पे इट मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट का एरर आता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है. ठीक है. इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. चलिए अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं. सो यस्टरडे आई टोल्ड यू वन थिंग. स्टार्ट मेथड का काम है, आपकी जो भी क्वेरी वगैरह है ना, वो स्टार्ट मेथड में लिखेंगे हम. ठीक है. और बिजनेस लॉजिक जो भी है वो एग्जीक्यूट में. ध्यान से समझो इसको. डेटा फेच करना, क्वेरी एग्जीक्यूट करना, ये काम आपके स्टार्ट मेथड का है. ये काम आपके स्टार्ट मेथड का है. जो आप क्वेरी वगैरह डिजाइन करते हो, एसक्यूएल क्वेरी, जिसको आप डेटाबेस और गेट क्वेरी लोकेटर मेथड से आप यूज एग्जीक्यूट करते हो, वो काम किसका? स्टार्ट मेथड का है. और उसके रिजल्ट पे क्या प्रोसेसिंग करनी है, बिजनेस लॉजिक क्या है आपका, वो सारा एग्जीक्यूट मेथड पे रहता है. तो स्टार्ट मेथड इज जस्ट यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. स्टार्ट मेथड का बेसिक काम क्या है? डेटा को फेच करना from database.com, from any of the table. It could be any of the. Yesterday we have done it on the hiring manager. Hiring manager पे किया है कल अपन ने उसको. ठीक है. हियर अभी आप शायद अकाउंट पे हो अभी आप, है ना. राइट. बट द स्टार्ट मेथड का बेसिक जो काम है वो है डेटा को फेच करके लाना.
ठीक है. So the SQL part will be there into start method, and your execute method, the entire business logic is present into execute. Finish method is a kind of, कि अगर कुछ इसके बाद में post execution, if you have something, post execution if you have something, then we used to write down that code into finish method. Even then एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और आता है, can we call a batch program, can we call a batch program into another batch program? तो अगर ऐसा भी है तो उसका आंसर यस, यस वी कैन डू दैट. वी कैन कॉल वन बैच इनटू अनदर बैच, एंड इफ यू वांटेड टू कॉल वन बैच इनटू अनदर बैच, उसको फिनिश मेथड के अंदर कॉल करना पड़ता है. हियर यू नीड टू कॉल अनदर बैच मेथड. If you wanted to call a batch program into another batch program, for example, this is my batch program number 1, ठीक है, and I wanted to call a batch program number 2, तो I will going to call it inside the finish method. ठीक है, तो ये लिख लो please. I don't know if it's written or not. Can we call can we call a batch program from another batch class? Can we call a batch class from another batch class? Yes, answer is yes. Yes, we can do that. If you wanted to call a batch into another batch, so where you need to call? We need to call it inside the finish method. Please write down this, okay? Please write down this. This is also one of the interview question. Can we call a batch class into another batch class? Yes, we can do that. And where method, not in a start, not in execute. If we wanted to cascade, if we wanted to perform the nesting of the batch class, if we wanted to have a cascade execution of the batch classes, then we need to call the another batch class into the finish method. तो finish method is actually some kinds of post execution क्या चाहिए आपको, वो सारा. क्वेरी वाला पार्ट स्टार्ट मेथड में, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूशन में, एंड देन आफ्टर पोस्ट एग्जीक्यूशन इफ यू वांटेड टू हैव समथिंग, देन वी डिसाइडेड इनटू द फिनिश मेथड. ये थोड़ा सा ख्याल रखो, ये डिफॉल्ट फ्लो जो है ना, वो थोड़ा सा ख्याल रखो कि स्टार्ट मेथड का क्या काम है और एग्जीक्यूट का क्या है और फिनिश का क्या है. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट मेथड पे आते हैं. सो आई नीड टू राइट डाउन अ क्वेरी. क्वेरी के लिए मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी बिकॉज डायनामिक क्वेरी है इसलिए. सो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स क्वेरी, ठीक है, यू कुड गिव एनी नेम, अकाउंट के ऊपर क्वेरी फायर कर रहा हूँ इसलिए. क्वेरी इज सिलेक्ट व्हाट आईडी एंड देन आई वांटेड टू फेच द नेम. ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, बस एनुअल रेवेन्यू है ना, यही मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं. सो एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अकाउंट. ठीक है, आई वांटेड टू फेच दिस होल थिंग फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट. इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं मुझको, आई जस्ट वांटेड दिस. हाँ, एक चीज और कर सकता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव सीन वन थिंग ओवर हियर. कुछ ऐसे भी अकाउंट देखो ना, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड, जिसमें एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू नहीं है. एथीना होम प्रोडक्ट्स में एनुअल रेवेन्यू नहीं है. अच्छा, इनको फेच करके कोई फायदा भी तो नहीं है आपका, बिकॉज यू वांटेड टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ ऑल दीज थिंग. तो इनको फेच नहीं करते ना, फिर हम इनको फेच नहीं करते हैं. मतलब क्वेरी जितना हो सके ऑप्टिमाइज करो. मैंने कहा ना, एसक्यूएल पे काम करते वक्त थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करो. अननेसेसरी, मतलब यहाँ पे आईडी, नेम, फोन, फैक्स, ये सब नहीं कर रहा मैं, बिकॉज मुझे जरूरत ही नहीं है. पहली बात, मुझे चाहिए क्या, मुझे आई वांटेड टू मेक एन कैलकुलेशन ऑन एनुअल रेवेन्यू. तो आईडी और नेम तो यूजुअली हम चलते हैं, इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते आप, इसको तो कॉल करना ही है क्वेरी पे. बट हाँ, उसके बाद कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो जितने चाहिए उतने ही करो. तो मैंने एनुअल रेवेन्यू ही किया. लेकिन फिर एक चीज, जब मैं यहाँ पे सर्व कर रहा था, तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे कुछ अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं जिसमें एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू नहीं है, जिसमें एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू नहीं है, तो उनको कॉल करके कोई फायदा नहीं है फिर. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं हम, कि वेयर हमें एग्जैक्टली वही चाहिए, वेयर एनुअल रेवेन्यू शुड नॉट इक्वल्स टू नल. मतलब मुझे आप सारे रिकॉर्ड्स मत निकालो, आप प्रिसाइसली वो रिकॉर्ड निकालो, वो रिकॉर्ड को फेच करो जहां की एनुअल रेवेन्यू की जो वैल्यू है ना, इज नॉट इक्वल्स टू नल. अगर वो नल है तो उसको फेच ही मत करो. अगर वो नल है, जैसे ये वाले रिकॉर्ड है आपका, रिकॉर्ड टू टेस्ट, सिंपल टेस्ट है ना, ये सब S4, उसके बाद में आपका टेस्ट अकाउंट, उसके बाद में टेस्ट शेयरिंग रूल 1, इसको फेच मत करो, बिकॉज इट डजंट हैव द वैल्यू ऑफ एनुअल रेवेन्यू. तो उसको फेच करके क्या फायदा है ना, तो उसको मत फेच करो. तो ये थोड़ा सा क्वेरी जब भी डिजाइन करते हो ना, तो क्वेरी जितना हो सके ऑप्टिमाइज बनाओ. क्वेरी जितना हो सके क्या कहते हैं उसको, जितना हो सके उसको प्रिसाइज बनाओ. अननेसेसरी फाइंडिंग्स मत डालो. अब यही चीज अपन रिटर्न कर देते हैं. तो रिटर्न व्हाट आई वांटेड टू एग्जीक्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है. तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होती है, डेटाबेस डॉट क्वेरी, कल भी बताया, मैं बार बार रिपीट करूंगा जब तक ये टॉपिक चल रहा है. ठीक है, दो मेथड होती है, डेटाबेस डॉट क्वेरी और दूसरा होता है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर. डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, ठीक है, ये वाली मेथड.
तो ये मेथड का फायदा क्या है कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेरी आप गेट क्वेरी लोकेटर के साथ देते हो तो इट कैन नाउ रिटर्न अप टू 50 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, एंड मोर ओवर दिस क्वेरी गेट क्वेरी लोकेटर मेथड कैन ओनली बी यूज इनसाइड बैच क्लासेस। गेट क्वेरी लोकेटर अगर आप और कहीं ट्राई करोगे आपको एरर मिलेगा। गेट क्वेरी लोकेटर मेथड कैन ओनली बी यूज इनसाइड द बैच क्लासेस, मतलब वो क्लास जिसने इंप्लीमेंट कर रखा है डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस, यानी बैच क्लास। तो आप उसमें अब देखो ये एरर यहाँ से जा चुका, ये पर्टिकुलर मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या क्वेरी, ये पर्टिकुलरली क्या करेगा कि ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, एंड दिस क्वेरी विल कलेक्ट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, 35 रिकॉर्ड्स है ना, 35 रिकॉर्ड जो है अकाउंट के, वो उसको कलेक्ट कर लेगा, और वो 35 रिकॉर्ड जो है ये रिटर्न कर देगा। अब ये रिटर्न करेगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे कल हमने इस पर डिस्कशन किया था, ये कहाँ आएगा, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये आता है, ठीक है। अब यहां से फिर जैसा हमने कल देखा था वहां बस सेम चीज, जो कल इंप्लीमेंट किया है ना वही सेम चीज अपन यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सेम चीज। तो अब ये सारा रिकॉर्ड जो है, ये सारा रिकॉर्ड जो है, मतलब ये डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर जो है यहाँ से ये रिटर्न करेगा, इसको कलेक्ट करेंगे इसके अंदर, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो आप लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर नहीं रख सकते। इसका जो डेटा टाइप है वो है एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें आप सेल्सफोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाओगे तो आप उस लिस्ट कलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिकॉर्ड रख सकते हो। आप लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओगे तो वो पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर आप सिर्फ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड रख सकते हो। लेकिन लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमको ये नहीं देखना पड़ता कि हमारी क्वेरी जो है ना वो प्रिसाइसली कौन से ऑब्जेक्ट पे फायर हुई है, नहीं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, एक चीज तो कंफर्म है वो सेल्सफोर्स का ही ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि जो क्वेरी आपने फायर करी इसका नाम है SOQL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये जो क्वेरी जो फायर हुई है ये फॉर श्योर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट पे हुई है। तो एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट बनाने से यहां पर ये एक जनरलाइज कलेक्शन बन जाता है, एक ऐसा जनरलाइज कलेक्शन बन जाता है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहां पे देते हैं हम लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से जो कुछ भी डेटा रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ से जो कुछ भी डेटा रिटर्न हो रहा है वो 35 रिकॉर्ड्स, वो सारे 35 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे इसके अंदर में। अब यहाँ से हम इसको लेना है और अपना बिजनेस लॉजिक डिजाइन करना है, ठीक है। चलिए, तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हर बार देखो, ये पहली बार में मुझे पता है कल तुम लोग की सुट्टी पुट्टी गलती, और मुझे पता है सबको कल कॉम्प्लिकेटेड लगा ये, पहली बार में ये सबको कॉम्प्लिकेटेड लगा है, मुझे 100% पता है ये चीज। लेकिन कल से आज के कंपैरिजन में ना तुमको 50% तो चीजें कवर हो जाती हैं, अगर तुमने कल प्रैक्टिस की होंगी और आज फिर ये प्रैक्टिस करो तो 50% चीजें कवर हो जाएंगी, और एक दो प्रोग्राम करोगे ना पूरा तो ये पूरा फॉर्मेट आ जाता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं समझता। लेकिन पहली बार में ये हर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हटके है, ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। अगर तुम ये हिसाब से चलोगे तो फिर दिक्कत जाएगी। तो कल से आज के केस में अगर तुम देखोगे तो कल जितनी तकलीफें गई थी उसकी 30-40% तकलीफें आज कम लगेंगी तुमको, और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो और 30-40% कम हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके ना अपने आप नलीफाई हो जाता है, धीरे धीरे करके अपने आप डाइल्यूट होता है ये, ठीक है। चलो, तो अभी अपने पास में जो कलेक्शन में रिकॉर्ड आया है, 35 रिकॉर्ड्स आए हैं अकाउंट से, ये क्वेरी जब फायर हुई तो उसने 35 रिकॉर्ड रिटर्न करी है। 35 शायद नहीं करी है, नहीं, एक मिनट, 35 नहीं करी होगी इसने, एक्चुअली ये रिकॉर्ड तो स्किप कर दी होगी, ये जितने भी ऐसे रिकॉर्ड जिसमें एनुअल रेवेन्यू नहीं है ना तो वो स्किप कर दी। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं एज्यूम करता हूँ कि 5 रिकॉर्ड है ऐसे, या फिर 10 रिकॉर्ड है, बहरहाल जो भी है। तो इसने एक मोटा मोटा ये मान के चलो, एग्जाम्पल कुछ ना कुछ तो लेना है, तो मैं कहता हूँ कि 25 रिकॉर्ड रिटर्न करी है इसने, ऐसा मान के चलते हैं, 25 लाख रिकॉर्ड इसने रिटर्न करी है। वो रिकॉर्ड्स अभी यहाँ पर आ गए, किस में आ गए, ये वाले कलेक्शन में। तो हमें इससे आगे जब बढ़ना है, जो कुछ भी प्रोसेस करना है वो सारा डेटा हमारा इस कलेक्शन के अंदर है। तो इसके पहले कि हम कुछ काम करें, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी किसी कलेक्शन पे काम करते हो तो कोई भी लॉजिक बनाने से पहले ये चेक करो कि कलेक्शन में रिकॉर्ड है या नहीं, कहीं कलेक्शन एम्प्टी तो नहीं है ना, कहीं कलेक्शन जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। सो इफ नॉट ऑफ व्हाट, दिस कलेक्शन डॉट इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी इज अ फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन देना जरूरी है। ये पहले किया करो हमेशा, कि जब भी अपन कोई कलेक्शन पे काम करते हैं, जब भी अपन कोई कलेक्शन पे काम करते हैं है ना, तो अपने को करना क्या है कि वो कलेक्शन एम्प्टी तो नहीं है, पहले ये देख लो आप। सबसे पहले यू नीड टू चेक वेदर द कलेक्शन इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। ओके, इसके बाद में टाइप कास्टिंग वगैरह भी है, एक एक रिकॉर्ड प्रोसेस करना है, वो सब करता हूं मैं। मतलब यहाँ पर एक चीज और करनी है मुझको, बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा इसके पहले मैं आगे बढ़ू। यहीं पर ही, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करता हूँ।
ग्लोबल डेसिमल, उसका टाइप है डेसिमल, डेटा टाइप रखता हूँ डेसिमल, बिकॉज एनुअल रेवेन्यू है ना, एनुअल रेवेन्यू जो है करेंसी फील्ड है, करेंसी का डेटा टाइप डेसिमल होता है। एनुअल रेवेन्यू जो फील्ड है वो करेंसी फील्ड है, और करेंसी का जो डेटा टाइप होता है वो डेसिमल होता है। तो टोटल एनुअल रेवेन्यू, टोटल एनुअल रेवेन्यू नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, डिफाइन करता हूँ, जिसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी वो 0.0, स्टार्टिंग वैल्यू 0.0, ठीक है। इसी के अंदर कैलकुलेशन करूंगा मैं सारा। तो ग्लोबल डेसिमल टोटल एनुअल रेवेन्यू 0, ठीक है। हाँ, अब इधर चलते हैं वापस अंदर में। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0, मतलब 0 से उसमें डिफाइन कर रखा है। अब जो भी कैलकुलेशन है हर बैच का रिजल्ट वो यहाँ पे जमा करता चला जाऊंगा। तो एक एक रिजल्ट उठाता हूं मैं। तो फॉर कहाँ से डेटा, कहाँ से लाना है आपको, अकाउंट टू प्रोसेस, यहाँ से एक एक रिकॉर्ड उठाने हैं आपको, एक एक रिकॉर्ड उठाने। कल मैंने आपसे पूछा था इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, तो इसका डेटा टाइप है एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका डेटा टाइप है एस ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक एक जो रिकॉर्ड उठ रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, एस ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट है ना ये, इसलिए एक वेरिएबल का नाम दो यहाँ पे, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दो, जैसे कि ओबीजे, यूजुअली अपन ये देते हैं, ठीक है, ओबीजे। अब यहाँ से क्या होगा, एक एक रिकॉर्ड निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 25 रिकॉर्ड्स आए एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहला रिकॉर्ड आएगा, पहला रिकॉर्ड आएगा ओबीजे में स्टोर हो जाएगा, पहला रिकॉर्ड आएगा ओबीजे में स्टोर हो जाएगा। अब इसकी करनी है टाइप कास्टिंग, जो लास्ट टाइम किया आपने, ठीक है, टाइप कास्टिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड जो आया है इस क्वेरी से, उसका वैसे तो टाइप एनुअल रेवेन्यू, उसका टाइप तो आपका अकाउंट है, अकाउंट है, लेकिन जब यहां स्टोर हुआ ना वो, तो उसका डेटा टाइप बन गया एस ऑब्जेक्ट। तो एस ऑब्जेक्ट से उसे कन्वर्ट करना है और अकाउंट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए आप एक एक रिकॉर्ड को कन्वर्ट करोगे। तो ये मैंने लिखा ओबीजे। कैसे करते हैं टाइप कास्टिंग, कल ही बताया मैं तुमको, बहुत सिंपल है टाइप कास्ट करना, ठीक है। इस तरह से पहले लिखो ओबीजे, किसको टाइप कास्ट करना है भाई, इसको टाइप कास्ट करना है, इसको टाइप कास्ट करना है ओबीजे को, और किस में कन्वर्ट करना है वो उसके अंदर लिखो। तो मैं इसे चाहता हूं कि ये कन्वर्ट हो अकाउंट के अंदर, ठीक है। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अकाउंट, ये अकाउंट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और जब ये कन्वर्ट होगा तो ये एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, उसका टाइप क्या रहेगा, अकाउंट। अब जब कन्वर्ट हो गया तो अकाउंट है ना, उसका एक वेरिएबल डिफाइन करता, अकाउंट एसीसी। तो अकाउंट एसीसी एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक रिकॉर्ड स्टोर होगा, मतलब पहला रिकॉर्ड जब यहां से निकला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 रिकॉर्ड्स थे, पहला रिकॉर्ड निकला ओबीजे में गया, ठीक है, ओबीजे से अंदर आया, यहाँ पर आया, ठीक है, पहला रिकॉर्ड निकला ओबीजे में गया, ओबीजे से यहाँ पर आया इसके अंदर, ठीक है। इसका टाइप है एस ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट हो गया अकाउंट में। अब ये एक रिकॉर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक अकाउंट रिकॉर्ड, एक अकाउंट रिकॉर्ड है, एक अकाउंट रिकॉर्ड है, इसीलिए अकाउंट का एक वेरिएबल, लिस्ट ऑफ नहीं, लिस्ट ऑफ अकाउंट नहीं बनाना, ये इसकी कैपेसिटी एक ही टाइप कास्ट हुआ, यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड आ रहा ना, यहाँ से एक रिकॉर्ड निकला, वो कन्वर्ट हुआ, यहाँ स्टोर हुआ, फिर दूसरा रिकॉर्ड आया, फिर वो कन्वर्ट हुआ, यहाँ स्टोर हुआ, फिर तीसरा रिकॉर्ड आया, वो कन्वर्ट हुआ, यहाँ स्टोर हुआ, तो एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड, इसलिए अकाउंट का वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो अब मेरा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर है, एसीसी में, ठीक है, मेरा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर है, एसीसी में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ग्लोबल वेरिएबल, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 0, टोटल एनुअल रेवेन्यू प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू मतलब इंक्रीमेंट करेगा किसको, एसीसी डॉट एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू, बस हो गया प्रोग्राम का, बस इतना ही है। देख लो अभी इसको समझ लो, मतलब एसीसी डॉट एनुअल रेवेन्यू, यहाँ ये जो पहला पहला रिकॉर्ड जो है, द फर्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ से जो पहला 25 रिकॉर्ड है अजम्पशन, 25 रिकॉर्ड में से पहला रिकॉर्ड आया ओबीजी में, ओबीजी से टाइप क्लास्ट हुआ अकाउंट में। अब ये जो पहला रिकॉर्ड है आपका, उसका जो भी एनुअल रेवेन्यू है, ठीक है, जो भी एनुअल रेवेन्यू, ठीक, इसकी तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस एनुअल रेवेन्यू मान के चलो 10 लाख है, तो 0 प्लस 10 लाख इसकी वैल्यू हो गई 10 लाख। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आया, दूसरा रिकॉर्ड की भी है 15 लाख, तो यहाँ पे पहले से क्या है 10 लाख है, और 10 लाख प्लस 15 लाख 25 लाख, तो हर बार आपका रिजल्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो दिस इज हाउ वी आर एक्सिक्यूटिंग दिस, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा सही हो चुका है पूरा। अब आप चाहो तो फिनिश मेथड में कुछ दो, और नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है, फिनिश मेथड में चाहो तो कुछ दे दो, अदरवाइज नहीं दिया तो भी चलता है। जैसे अगर मुझे बैच आईडी वगैरह प्रिंट करनी, कल मैंने ब्लैंक रखा था, आज एक चीज बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे सिस्टम डॉट डीबग, लेकिन हालांकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है सिस्टम डॉट डीबग, क्योंकि बैच प्रोग्राम्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ द स्कोप, है ना। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि बैच जॉब आईडी ला सकता हूँ, बैच जॉब आईडी
इक्वल्स टू, इफ यू वांटेड टू प्रिंट, अगर कुछ प्रिंट करना ही अपनी टेंडेंसी है तो हमने ये जो बी कंटेक्स्ट है ना, इसकी मदद से जॉब आईडी फैच कर सकते हैं। सो बी कंटेक्स्ट डॉट, देखो गेट जॉब आईडी है ना, यहाँ से ही मिल जाता है, सब कुछ यहीं से मिल जाता है। अपेक्स देखा जाए तो बहुत ईजी है, तो यहाँ चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो इसको ब्लैंक रखो, कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रोग्राम मेरा बन के तैयार है। प्रोग्राम आइडियली बिल्कुल सही है, पता है क्या, प्रोग्राम आइडियली बिल्कुल सही है लेकिन काम नहीं करेगा। प्रोग्राम लॉजिकली बिल्कुल सही है लेकिन काम नहीं करेगा। अब क्यों ये काम नहीं करेगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो वो देखते हैं। देखो, पहली बैच जब फॉर्म होगी, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब पहली बैच फॉर्म होगी, ठीक है, पहले जैसे अभी मान के चले कि 35 रिकॉर्ड्स है, 25 रिकॉर्ड्स है, जो भी है, पहली बैच जब फॉर्म होगी तो वो कैलकुलेट करेगा पांच, जैसे कोई भी पांच, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 रिकॉर्ड्स का एनुअल रेवेन्यू कैलकुलेट करेगा और उसे स्टोर कर देगा टोटल एनुअल रेवेन्यू इसमें। फिर जैसी सेकेंड बैच कॉल होगी, आइडियली क्या होना चाहिए था, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि फॉर एग्जांपल पहले 5 रिकॉर्ड का जो एनुअल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 30 लाख है। एग्जाम्पल है मेरा कि पहली बैच जब एग्जीक्यूट हुई उसने 5 रिकॉर्ड को प्रोसेस किया। बैच नंबर B1 में क्या हुआ, 5 रिकॉर्ड प्रोसेस हुए। बैच नंबर B1 में 5 रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, 5 रिकॉर्ड, 1 2 3 4, एक और 5, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, तो 50 लाख, 50 लाख जो है ये हो गया आपके टोटल एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू 50 लाख, ये हो गया बैच B1। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एनुअल रेवेन्यू जो है, तो ये वाला जो वेरिएबल है मेरा, ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर रखा है, अच्छा देखो एक चीज समझो, क्लास अगर आप बैच क्लास बना रहे हो ना तो सब कुछ ग्लोबल रहेगा, आपकी मेथड्स भी ग्लोबल रहेंगी, आपके वेरिएबल्स भी ग्लोबल रहेंगे। वैसे अगर तुमको याद हो, इसको अगर हम क्लास बोलते हैं तो इसके अंदर जो कुछ भी है उसको मेंबर बोलते हैं। ये याद आ रहा है क्या कुछ, क्लास और मेंबर, मेंबर क्या हो सकते हैं, मेंबर दो हो सकते हैं, या तो कोई वेरिएबल जो आपने अंदर डिफाइन कर रखा है, या तो कोई मेथड। खैर जो भी आपने अंदर डिफाइन कर रखा है, क्लास के स्कोप के अंदर जो कुछ भी है वो उसका मेंबर है। मेंबर भी दो तरह के होते हैं, मेंबर या तो फंक्शन हो सकता है कोई मेंबर, या तो कोई मेथड हो सकती है, प्रोसीजर हो सकती है, जैसे ये फंक्शन है, ये प्रोसीजर्स है ना, इन शॉर्ट मेथड है, इन शॉर्ट क्या है, मेथड। तो मेंबर मेथड हो सकती है या फिर मेंबर आपका कोई वेरिएबल हो सकता है। अब जो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ ना उसको पकड़ के चलना, बैच क्लास खुद भी ग्लोबल होती है, बैच क्लास, बैच क्लास खुद भी ग्लोबल होती है, उसके सारे मेंबर भी ग्लोबल होते हैं। तो उसके अंदर जैसे स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड, फिनिश मेथड है, ये भी मेंबर है, ये भी ग्लोबल रहेंगे। आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे ना उसके अंदर, वो भी ग्लोबल रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, ग्लोबल। तो बैच क्लास खुद भी ग्लोबल होती है, उसके सारे मेंबर भी ग्लोबल होते हैं, ये पकड़ के चलना। चलो अभी मैं क्या बोल रहा था आपको, जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया टोटल एनुअल रेवेन्यू, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब पहली बैच आई है ना, पहली बैच एग्जीक्यूट हुई, तो आपका जो टोटल बैच नंबर बी वन जब एग्जीक्यूट हुई तो टोटल एनुअल रेवेन्यू, ये जो अपना ये जो वेरिएबल है टोटल एनुअल रेवेन्यू, इसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख। जब बैच B2 आई, ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब वो 50, जैसे उसका एग्जीक्यूशन आया, मान के चलो टोटल एनुअल रेवेन्यू उसके अंदर कैलकुलेट हुआ 10 लाख या 20 लाख उसका, तो 50 + 20 ये हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके बाद में इसकी वैल्यू होना चाहिए 70 लाख, 70 लाख। बट ये नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको एक चीज बताई मैंने कि जब एक बैच एग्जीक्यूट होती है उसका जो रिजल्ट होता है, जैसे सेकंड बैच प्रोसेस में आती है ये रिजल्ट लॉस्ट हो जाता है। तो बैच B2 का जब एग्जीक्यूशन होगा ना, जब बैच B2 का एग्जीक्यूशन होगा तो पता रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा 20 लाख, जो कि बैच B2 का एग्जीक्यूशन, और पुराना रिजल्ट लॉस्ट, पुराना रिजल्ट लॉस्ट। ये है डिफॉल्ट बिहेवियर बैच प्रोग्राम का। तो ये बिल्कुल वैसा एक्ट नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। अब ये अगर इफ वी वांटेड टू कैरी फॉरवर्ड, if we wanted to carry forward the result of one batch to another batch, if we wanted to carry forward the result of one batch to another batch, then we need to, we need to implement one more thing। एक इंटरफेस तो आप लगा ही चुके हो यहाँ पे, एक डेकोरेटर तो आप लगा ही चुके हो, एक और डेकोरेटर लगाना है। एक मेडल इसने ऑलरेडी हासिल कर रखा है डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस का, एक मेडल आपको और लगाना है इसके साथ में, एक और चीज से आपको डेकोरेट करना है, तो एक और चीज यानी कॉमा, एक इंटरफेस और लगाना है।
और वो इंटरफेस है आपका डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस, डेटाबेस डॉट डॉट STA, नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, STA स्टेटफुल, एनीवेज नहीं भी बता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटाबेस डॉट स्टेटफुल, ठीक है, ये इंटरफेस डेटाबेस डॉट स्टेटफुल, ये इंटरफेस। तो जब आप ये इंटरफेस, इफ यू आस्क दिस इंटरफेस along with the batchable, now it will carry forward the result of one transaction of the batch to another transaction। अब जाके ये पूरा काम सही होगा। तो प्रोग्राम में मैंने कहा ना कोई गड़बड़ नहीं थी, बस ये है कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर था, और ये डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड करने के लिए वी आर अटैचिंग वन मोर decorator component over here. We are asking for one more interface. Along with batchable interface, we are asking to attach what? Database.stateful interface. तो ये जो stateful interface होता है ना, it maintains the state. It used to maintain the result. It used to carry forward the result of one transaction of the batch to the next transaction. Now this program will work fine. Absolutely fine. ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क फाइन। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट नहीं देख पाते हैं बिकॉज बैच प्रोग्रामिंग मैंने कहा ना आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट होती है, बट यस आई कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो हाउ विल यू एग्जीक्यूट द बैच प्रोग्राम? चलिए नाउ टेल मी हाउ विल यू एग्जीक्यूट द बैच प्रोग्राम? यस, हाउ विल यू एग्जीक्यूट द बैच प्रोग्राम? व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग बैच प्रोग्राम? कम ऑन, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग बैच प्रोग्राम? कम ऑन टेल मी, आई वांटेड टू एग्जीक्यूट दिस बैच प्रोग्राम, व्हाट इज द स्टेप? What is the step to execute the bash program? Come on, come on, come on, tell me. What is the step to execute the bash program? How will you execute the bash program? From command prompt, sir. I am into this, not command prompt. You are onto Apex async execute anonymous window. Command prompt को तो होता ही नहीं, यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो? हाँ. Okay. परिस्थिति खराब है थोड़ी सी। The first thing, as in step number one, what? Huh. So as in step number one, what we need to do? We, or rather, create the object of batch class. आपने जो बैच क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। दिस इज स्टेप नंबर वन। एंड देन स्टेप नंबर टू, execute the batch class with the help of database dot execute batch method, database dot execute batch method, ये है इसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलिए ऐसे भूलो मत यार, कल ही तो प्रोग्राम हुआ है अपना। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल बैच क्लास का इंस्टेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। बैच क्लास का नाम क्या है? ये नाम है। लेट मी कॉपी दिस नेम, पेस्ट इट ओवर हियर। इसका कोई एक इंस्टेंस बनाओ। ठीक है, इसका कोई एक इंस्टेंस बनाओ, फॉर एग्जांपल REVENUE रेवेन्यू बैच। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू वंस अगेन बैच नेम एंड मेक इट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन। तो आपने जो क्लास बनाई उसका नाम ये था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया इस नाम से। इसको कॉपी करता हूं मैं, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आप सेकंड दोगे आप, एंड द मेथड नेम इज डेटा बेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। Now there are two flavors for this. There are two flavors, है ना, दो फ्लेवर्स होते हैं। If you give this, तो डिफॉल्ट बैच साइज लगता है, and default batch size is integer because you don't have any provision here. You don't have any provision to give the batch size. तो सेकंड जाता हूं मैं, सेकंड वाला जो फ्लेवर है इसका वो लेता हूं। सेकंड फ्लेवर है जहां पे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ दिया, और यहाँ देना है आपको बैच साइज। तो बैच साइज हमने डिसाइड कर रखा है 5, है ना, वो हम दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ यू एग्जीक्यूट द बैच। ठीक है, अब इसको भूलो मत यार, बार बार एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है,
सिस्टम डॉट डीबग हालांकि लगाया मैंने, बट मुझे पता है कि ये नहीं देगा, बिकॉज हमेशा आउट ऑफ द बैच स्कोप रहता है इसका, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहता है ये। तो एनुअल रेवेन्यू इनफैक्ट कैलकुलेट हुआ है। इस प्रॉब्लम के साथ दिक्कत ये है कि इसका हम आउटपुट देख नहीं पाएंगे अनलेस एंटिल मैं इसको विजुअल फोर्स पे कॉल करूँ। तो विजुअल फोर्स पेज पे आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तब ये जो वेरिएबल है हमारा जहाँ पे सारा रिजल्ट जमा हुआ है, इसको हम विजुअल फोर्स पेज पे लेके जाएंगे, तब इसका आउटपुट देखेंगे। अभी नहीं देख पाएंगे। अभी अगर आपको ट्रैक करना है तो आप एक चीज जो कर सकते हो, मैंने कल भी बताया था, वो ये कि गो टू द सेटअप मेन्यू और जाके आप अपना जॉब्स में जाइए, और जॉब्स में जाने के बाद में अपेक्स जॉब पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि बैचेस जो एग्जीक्यूशन में आई है। तो जैसे आज की ये बैच आई है, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड। कोई एरर आया इसमें? देखो कोई एरर नहीं। कल एक रिकॉर्ड फेल हुआ था हमारा, किसी वैलिडेशन रूल की वजह से एक रिकॉर्ड फेल हुआ था। आज कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। कितने नंबर ऑफ द बैचेस बनी है? 5 बैचेस बनी है, ठीक है। टोटल जो है बैचेस बनी है आपकी 5 बैचेस बनी है। फेलियर्स कितने? 0। कल एक बैच फेल हुई थी, बट आज नहीं हुई है। ओके, स्टार्ट कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, बैच क्लास का नाम क्या था, हमारी बैच क्लास जो हमने बनाई उसका नाम है तो कैलकुलेट टोटल एनुअल रेवेन्यू बैच। और जो आईडी जो मैं प्रिंट कर रहा था यहाँ पे, आई वाज ट्राइंग टू प्रिंट दिस, इस प्रोग्राम में नहीं क्या, यहाँ पे फिनिश में जो मैंने ये गेट जॉब आईडी जो लिखा है, तो ये जो गेट जॉब आईडी जो फंक्शन होता है वो बेसिकली ये देता है आपको, ये वाला जॉब आईडी, ठीक है। तो ये हम ले जाते हैं अभी, मतलब जब आगे विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तब यहाँ से रिजल्ट को माइग्रेट करेंगे। अभी नहीं कर पाएंगे आप। सिस्टम डॉट ई पर काम नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लॉग जरूर जनरेट होता है, लॉग जनरेट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं देख सकते। यू कैन सी लॉग जरूर जनरेट होता है, ये देखो लॉग जनरेट होता है। अगर अपन लॉग्स पे क्लिक करें तो लॉग मिलता है अपने को, ऐसा नहीं लॉग नहीं मिलता, ठीक है। तो लॉग में अपने को पता चलता है कि क्या हुआ है। तो लॉग जरूर जनरेट होता है। नंबर ऑफ द क्यूएबल जॉब्स एडेड, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉल्स, पुश कॉल आउट्स, ठीक है। लॉग जरूर जनरेट होता है, बट इसका जो आउटपुट है वो यूजुअली यहाँ से नहीं देखते हम, विजुअल फोर्स पे उसको माइग्रेट करना पड़ता है, वीएफ पेज बना के उसको देखा जाता है विजुअली, ये तरीका है उसका, ठीक है। बाकी ट्रैक करना है तो ट्रैक करने के लिए आप इधर आओ, अपेक्स जॉब पे आओ, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि बैच एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। और हुई है तो पूरी कंप्लीट हुई है, कुछ एरर्स आए हैं क्या उसमें, तो वो आपको बेसिकली यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। ऐसा है इसका एग्जीक्यूशन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस बाय टुडे इटसेल्फ। कल मैं इसके आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्लेक्स क्यूज, ठीक है। कल इसको स्टार्ट करता हूँ।